سیلاب میں گھرے پنجاب پر ایک اور امتحان، لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش، عیسیٰ خیل کے مختلف علاقوں میں بارش، ندی نالے بکھر گئے، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، ملتان، بہاولپور، کہروڑ پکا میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، لاہور میں بیدیاں روڈ پر مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق 4 زخمی، تیز بارش سے جناح اسپتال کی ایمرجنسی پانی سے بھر گئی، دریائے راوی، چناب اور ستلج کی خوفناک لہروں نے پنجاب میں ہر طرف تباہی پھیر دی، سیلابی ریلوں میں متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، لاکھوں افراد متاثر، مختلف حادثات میں 30 افراد جاں بحق، فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق ریلا 24 گھنٹے بعد ہیڈ سدھنائی سے گزرے گا۔ بھارت کا ایک اور آبی وار، اپنے علاقے بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ دیا، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ، قصور کے قریب دریائے ستلج میں انتہائی خطرناک صورتحال، اونچے درجے کے سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند کو تہس نہس کر دیا، سیلابی پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں میں داخل، سرحدی علاقے زیر آب، گنڈا سنگھ والا پریڈ پوائنٹ، مونومنٹ بھی ڈوب گئے، مساجد میں گاؤں خالی کروانے کے اعلانات، لوگوں کی نقل مکانی، بورے والا میں بھی بے رحم موجوں سے ساہوکا اور جملیرا سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے، زمینی راستے منقطع، پنڈی بھٹیا میں 100 سے زائد دیہات میں پانی بھر گیا، علاقہ مکین گھروں میں محصور، دریائے جہلم میں چھوڑے جانے والے پانی سے سطح 5 فٹ تک بلند، 16 سے بڑھ کر 23 فٹ ہو گئی، راجن پور کو بھی شدید خطرہ لاحق۔ دریائے چناب میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، احمد پور، سیال، گڑھ مہاراجہ اور جتوئی کے درجنوں دیہاتوں کو لپیٹ میں لے لیا، گڑھ مہاراجہ سے گزرنے والے 10 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے سے مزید تباہی کا خدشہ، شہر سلطان میں سیلابی ریلے کا خطرہ، ہائی الرٹ جاری، فلڈ سپر بند پر ریسکیو کا کنٹرول کیمپ قائم، آج رات ہیڈ تریمو اور باہو پل گڑھ مہاراجہ سے 10 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان، اکاڑا کے مقام پر دریائے راوی میں کنڈ بوہڑ اور ماڑی پتن پر درمیانے درجے کا سیلاب، سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، زرعی رقبہ زیر آب، علاقہ مکینوں کا انخلا جاری، سرائے مغل ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی اطاڑی، دولو ملتانی، اوجلا، گروکی، کالو کھوکر سمیت مختلف دیہاتوں کی طرف بڑھنے لگا، کئی مقامات پر عارضی بند ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 3,03,000 کیوسک گنڈا سنگھ پہ وہ چل رہا ہے، کنٹینوس فلو جو ہے وہ ہمارا 2,61,000 کیوسکس کا گنڈا سنگھ کے مقام پر رہا، تقریباً 22 دیہات کو اس پانی کے متوقع خطرے کے پیش نظر وہاں سے خالی کروایا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار، متاثرہ اضلاع میں ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم عرفان کاٹھیا کہتے ہیں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، دریائے ستلج کے قریبی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا، سیلابی ریلا ہیڈ سلیمان کی جانب بڑھ رہا ہے، اس وقت ہیڈ تریمو پر 1,45,000 کیوسک کا ریلا ہے، دریائے راوی میں پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، ہیڈ مرالا پر پانی 1,75,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پاک فوج رنگ، نسل یا مذہب کی تفریق کے بغیر ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا دورہ بھی کیا، سکھ کمیونٹی کو یقین دلایا تمام عبادت گاہوں کی جلد بحالی یقینی بنائی جائے گی، سکھ رہنماؤں اور رمیش سنگھ اروڑوں نے بروقت امدادی کارروائی پر پاک فوج اور فیلڈ مارشل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے، پاکستان اور سکھوں کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، سول انتظامیہ بھی شامل، دریائے ستلج اور ہیڈ سلیمان کے متاثرہ علاقوں میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کئی ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے، اب تک متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے، متاثرین کی ضروری طبی امداد کے انتظامات مکمل، پاک فوج ہمیشہ کی طرح خدمت کے جذبے کے ساتھ ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔
भारत की जानिब से पानी के गैर मामूली अखराज के बास दरियाए सिंध के दरियाओं में धी तुग़यानी शदीद सैलाबी रेले से नौशहर फिरोज के कच्चे इलाकों में तबाही, हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह, दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। लाखों मकीन अपनी जानो माल बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। हुकूमती गफलत, इंतजामी बेहिसी से मुकामी लोग शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 4 से 5 सितंबर के दौरान गिड्डू सक्खर के मुकाम पर सैलाब का खदशा। DGPDMA के मुताल्लिक़ इदारों को पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाबी रेला सिंध में जो आ रहा है उस पर हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि मुतहरिक है। 16,50,000 अफराद तक जो हैं वो इस सैलाबी रेले से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से 1657 जो है विलेज हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। 551 हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं रिलीफ कैंप्स, जिसमें हमने खुदा न खास्ता जैसे भी सूरत अगर कोई ख़राब हुई तो उसको हम लोग इमीडिएटली मोबिलाइज करेंगे। पंजाब से आने वाले सैलाब से निमटने की तैयारियां सिंध हुकूमत ने भी कमर कस दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराज में पानी का बहाव तेज, 16,50,000 अफराद सिंध में सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तोसा के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है, फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। 2 या 3 सितंबर को पानी का रेला सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध के अतराफ 15 अजला हैं। भारत बाज न आया, दरिया रावी में भी पानी छोड़ दिया। कसूर, पाकपतन और दिवालपुर में बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें, हम इस वक्त दरिया रावी शदरा के मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पे 2,25,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त दरिया रावी शदरा के मुकाम से इस वक्त जो रेला वो गुजर रहा है। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन में नज़र आ रही है। इस वक्त 5 दरिया हैं पंजाब के, जिसमें से 3 जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में। पंजाब में सैलाब की लम्हा व लम्हा कवरेज में GTV न्यूज सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर तियानजन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से होगी। पाक चीन दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। खित्ते में मौजूद मुमालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरार और बढ़ती कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। इंडियन मीडिया ने 3 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्द करार दिया। हसनैन अली, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित हो गया तीनों शहरी रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। झूठी खबर पर भारतीय मीडिया का रेड अलर्ट भी जारी। मोदी हुकूमत बिहार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को निशाना बना रही है। हम दहशतगर्द नहीं, भारतीय मीडिया झूठी खबरें नशर कर रहा है। भारत फॉल्स फ्लैग तर्ज पर एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेल रहा है। तीनों शहरियों का मौक़िफ़। आलमी सतह पर भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के मुअतरफ निकले। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द अहम करार दे दिया। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दार मेमदोफ ने अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने अमेरिकी सदर को मुतासिर किया। हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेर सरबराही कायम कमेटी का इजलास। फैसले का मकसद रियासती असासों की बेहतरी के लिए गैर मुल्की शराकत दारी को राग़िब करना है। अमारात को एयरपोर्ट की हवालगी से इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेशनल और मालियाती चैलेंजेस का सामना है।
पाक सऊदी ताल्लुकात में मजीद गर्म जोशी। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाली माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर दोस्त मुल्क, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर जरदारी ने पाकलैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने के लिए अहम संग मील। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाला खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया, जो सरहदी इदारों के माबैन मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगा। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की आमद। खैबर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बोनेर में बारिश से पीर बाबा बाजार की नदी में पानी का बहाव तेज। बालाकोट में हदसा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागाम को 4 घंटे बाद खोल दिया गया। भारी पत्थर हटाकर सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसी दर्जनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन। किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए भारी नफरी और ट्रैफिक एहलकार मौके पर तैनात। कोहाट में पुलिस से मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके ASI को शहीद जबकि 2 एहलकारों को जख्मी कर दिया था। वज़ीर दाखिला का कोहाट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फ्लैट से खातून की गला कटी लाश मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ। दौरान तफ्तीश शौहर कमर आबदी का बीवी को कत्ल करने का एतराफ। इंकशाफ किया कि बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशावर दवा पिलाकर सुला दिया था। अहलिया पर शक करता था। रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। सोने की फी तोला कीमत में 3,600 रुपए का इजाफा। नई कीमत 3,67,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,14,986 रुपए का हो गया। गजा सिटी पर कब्जे के लिए सेहोनी फौज के वहशियाना हमले। सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से 44 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 328 हो गई। सेहोनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में 12 फौजी हलाक और जख्मी। फलस्तीनियों की बड़ी पैमाने पर नकल मकानी शुरू। अमरीकी महकमा खारजा का इसराइल नवाज इक़दाम। फलस्तीनी नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। फलस्तीनी अथॉरिटी और PLO पर वादा खिलाफी। आलमी अदालतों से रुजू और यकतरफा रियासती तस्लीम की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल की जानिब से अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। फलस्तीनी मंदूब का इजहार तशवीश। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को बड़ा धचका। वफाकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने के लिए टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रंप अदालती फैसले पर शदीद बरहम। कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। और 3 मुल्की T20 सीरीज। पहले मैच में पाकिस्तान का अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में फातिहाना आगाज। दूसरे मैच में पाकिस्तान और UAE का आज टाकरा होगा। 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी।